Hello, my dear students. How are you? Welcome to the beautiful channel पढ़ाई का कवच. Myself Tosip sir, and welcome to the online education session organized by the Noblehood School. Student, as you know, in our previous session we have completed our unit number 4, which is about the national movements started inside the India. Now, let us carry on our journey of movement toward the independence. अब तो हम आज़ादी लेकर ही सांस लेंगे. तो उसी तरीके से यूनिट नंबर 5 हमारा आज शुरू होने के लिए जा रहा है. आई होप दैट यू आर एक्साइटिंग एज वेल. तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट नंबर 5, मूवमेंट टुवर्ड इंडिपेंडेंस. The period from 1920 to 1947 is considered as a Gandhian age and the Gandhian movements of struggle for independence. We know, student, from 1915 the Gandhiji entered in the India, and the entry of main hero is there inside our freedom struggle picture. So after the 1920 until 1947, Mahatma Gandhi played a vital role in the Indian independence. So let us carry on our journey of this second stage. The second stage of national movements of India is the struggle for having constitutional rights. Moreover, it is the struggle for the freedom of India too. In India, we are first, पहले जो हमने मांग रखी थी अंग्रेज सरकार के सामने कि भाई हमें हमारी सरकार चलाने दो, आप जो है सिर्फ भारत के ऊपर अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स रखो. यानी कि भारत के ऊपर राज आपका रहेगा, लेकिन सरकार हम कहेंगे वैसे चलेगी. शासन हमारे लोगों का होगा, लेकिन राज आप करोगे. तो वैसे उसके बाद फिर क्या हुआ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा हत्याकांड, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और स्वराज्य पार्टी जैसी पार्टियों के आने के बाद भारत के लोगों को मालूम चला कि भाई हम तो अपनी सरकार खुद चला सकते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है. सो आफ्टर दैट द इंडियन पीपल अंडरस्टैंड दैट वी नीड आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स as well as our freedom too. So this struggle passed through a stream of events and there was a uniform effect of it. So we shall observe of the effects in the chapter. So जो भी घटनाएं बनी उसकी असर क्या हुई उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. So first is Simon Commission. – 1923 के अंदर जो स्वराज्य पार्टी लास्ट में 1926 में जब वो हारी, उसके बाद से कंटिन्यू करेंगे 1942 से कि साइमन कमीशन जब भारत आया. Montagu Chelmsford 1919 amendment declared that a commission should be sent to India after 10 years to examine the effects and operation of constitutional reforms and suggest more reforms of India, but 2 years later गवर्नमेंट अपॉइंटेड साइमन कमीशन. यानी कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारा हुआ उसमें ऐसा डिक्लेयर किया गया था कि एक कमीशन आएगा, मतलब लोगों का एक जूथ आएगा इंडिया के अंदर 10 साल के बाद, कि जो ऑब्जर्व करेगा कि भाई भारत में संवैधानिक सुधार करने की ज़रूरत है या नहीं है. बट 2 साल पहले ही गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन को अपॉइंट कर दिया. The commission consisted Sir John Simon and 7 other members. All of them were members of the British Parliament. समझिएगा, अब ये सुधार हुए या नहीं हुए और हमारे संविधान के अंदर सुधार चाहिए या नहीं चाहिए, इसको तय करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 7 लोगों का ग्रुप भेजा और उसमें उसके लीडिंग मेंबर थे सर जॉन साइमन, कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से बिलोंग करते थे. There was not a single Indian as a member. Indians recommended inclusion of Indian members in the commission so as to understand the problems and the pain of Indian society. But British rejected this recommendation. It is very true. If any of the person need to feel the emotions, the pain, the problems of the Indians, then there should be Indians. और
They are the representative of the people. But in the Simon Commission, there is no single member was Indian. So, the Indians decided to oppose it. Simon Commission was greeted with strikes, assembly, processions, loud slogans, Simon go back, and unfurling of black flags and apparel. The British government suppressed the movement mercilessly. The assistant police superintendent ordered lathi charge on Lalaji processions. Lala Lajpat Rai was injured seriously while taking the lead of procession in Lahore. Few months later, he passed away. The news of Lalaji's death instigated Veer Bhagat Singh, Sukhdev and Rajaguru. Therefore, they killed Saunders. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब ये ऐलान किया कि साइमन कमीशन बिठाया जाएगा तो भारतीयों ने भी सोच लिया कि भाई इसको हम विरोध करेंगे, इसका हम विरोध करेंगे। तो कई जगहों पे हड़ताल गई, लोग इकट्ठा होने लगे, प्रोसेशन हुए, बड़े नारे पुकारे गए कि साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। लोगों ने काले झंडे फरकाए, काले कपड़े पहने और इस पूरे कमीशन का विरोध किया। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट तो थी ही क्रूअल। उसने इस मूवमेंट को दबाने के लिए ब्रिटिशरों ने क्या किया, बहुत ही क्रूअल तरीके से, दयाविहीन तरीके से लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करना शुरू किया। द असिस्टेंट पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑर्डर लाठीचार्ज एंड ऑन लालाजीज प्रोसेशन। जो रैली निकल रही थी लाला जी की, उसमें एक एएसआई था, एसपी जिसे हम कहते हैं, पुलिस सुपरिटेंडेंट, उन्होंने लाठीचार्ज वहाँ पे ऑर्डर दे दिए और लाला लजपत राय उसके अंदर घायल हुए बहुत ही सीरियस तरीके से लाहौर के अंदर। थोड़े महीनों बाद उनकी मौत हो गई। ये न्यूज़, ये समाचार जब पहुँचे लाला जी की मृत्यु के, तभी वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने ये तय कर लिया कि जो लाला जी के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था उसको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और इसीलिए उन्होंने सॉन्डर्स की हत्या कर दी। Nehru Committee. Next topic is, with the opposition of Simon Commission, Hindi Wazir Birkenhead presented a draft of the constitution as in Simon Commission, in which it stated that the Indian leaders of all parties formulate appropriate constitution which the British government will further think upon. अब साइमन कमीशन का विरोध हुआ तो तभी के जो हिंदी वजीर थे बर्कनहेड, उन्होंने एक ड्राफ्ट पेश किया, मतलब एक दस्तावेज पेश किया संविधान के अंदर साइमन कमीशन के सामने, कि जिसमें लिखा था कि भारत के सभी नेता और सभी पक्ष एक अनुकूल संविधान बनाएंगे कि जिसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो विचार करेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट विचार करेगी। By understanding the challenges of this report, National General Assembly President drafted Nehru Committee report. अब इतने बड़े पड़कार को, इतने बड़े चुनौती को स्वीकार करने के लिए नेशनल जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट ने नेहरू कमेटी रिपोर्ट बनाया। दिस रिपोर्ट which was given is known as Nehru report, which states the dominion status, independent judiciary, फंडामेंटल राइट्स एंड द एडल्ट सफरेज। इस रिपोर्ट के अंदर डोमिनियन स्टेटस यानी कि भारत एक गणराज्य के तौर पे होगा, जो अदालतें होगी वो स्वतंत्र होगी, निष्पक्ष होगी, लोगों को उनके अधिकार मिलेंगे, और एडल्ट सफरेज यानी कि 18 साल की उम्र के ऊपर मतदान की वही तय की जाएगी। इवेंचुअली द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिजेक्टेड द रिकमेंडेशन मेड इन दिस रिपोर्ट। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस रिकमेंडेशन यानी कि सलाह जो दी गई थी इस रिपोर्ट के अंदर, उसको नकार दिया। उसके बाद डिमांड बढ़ी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। ड्यूरिंग दिस टाइम नेशनल असेंबली मेंबर्स जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस वर एक्टिव नेशनल लीडर्स। तभी के जो राष्ट्रीय नेता थे उसमें से गणना होती थी एक जवाहरलाल नेहरू की और दूसरे सुभाष चंद्र बोस की। They were the propagators of complete independence, कि जिन्होंने संपूर्ण स्वतंत्रता के ऊपर जोर दिया था। Youth of India were not happy with the dominion status. On the banks of river Ravi,
in Lahore, under the leadership of Jawaharlal Nehru, National General Assembly passed a resolution of complete independence. कंप्लीट इंडिपेंडेंस मतलब पूर्ण स्वराज, कि जिसके अंदर प्रजा के ऊपर अधिकार सिर्फ प्रजा के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का होगा, ना कि कोई बाहरी का, मीन्स ब्रिटिशर्स का. After that, on 26th January 1930, the members took the oath of complete independence. इसीलिए आज भी हम रिपब्लिक डे जो है वो 26 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1930 में रावी नदी के तट के ऊपर लाहौर में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुआ पूर्ण स्वराज का, उसकी तारीख थी 26 जनवरी. इसीलिए 26 जनवरी हमारे लिए एक बहुत ही यादगार पल है, एक यादगार दिन है. Independent India has made the Republic Day memorable by implementing the Constitution of India on this day. So the Constitution was formed in the 26th of November in 1949, but it was implemented in a 26th of January 1950 to in the memory of this day of resolution. दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम. लेट अस स्टडी दिस. एज अ पार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी जी डिसाइडेड टू गो टू दांडी विलेज बाय इट्स सी कोस्ट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ. नमक का कानून तोड़ने के लिए गांधी जी जो थे वो दांडी करके एक गांव था, वहां पे जाने की योजना बनाई गांधी जी ने. ऑन द 11th March इवनिंग इन द असेंबली ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल द मैसेज ऑफ सत्याग्रह वाज सेंट. 11 मार्च 1930 को हजारों लोगों की हाजिरी में सत्याग्रह का एक मैसेज जो है, यानी कि एक पत्र, वो सभी लोगों को भेजा गया. Even if people got arrested, with firm determination of non-violence, struggle against government continued. अगर लोगों को हिरासत में भी लिया जाए तो उसके सामने अहिंसा का हथियार इस्तेमाल करते हुए इस स्ट्रगल को, यानी कि इस पूरी की पूरी योजना को आगे बढ़ाई जाएगी. On 12th of March 1930, under his leadership, Gandhi ji commenced Dandi Yatra with his supporters from Harijan Ashram. Now it is Gandhi Ashram. Singing the hymn, Vaishnav jane to tene kahiye je पीड़ पराई जाने रे. ये भजन था तभी के समय का, और हर एक इंसान के मुंह के ऊपर ये भजन, तब वो यात्रा में जो लोग जुड़े थे उनके ऊपर था, वो लोग गा रहे थे इसको. दांडी यात्रा जो कि 12 मार्च 1930 को शुरू हुई, कि जिसका नेतृत्व कर रहे थे गांधी जी. अब गांधी यात्रा की शुरुआत जो है वो गांधी आश्रम, पहले जिसका नाम हरिजन आश्रम था, वहां से हुई. गांधी जी सेड इन दांडी यात्रा 29th of March 1930, I shall die the death of crow and dog, but I will not return to this ashram without attaining पूर्ण स्वराज. गांधी जी ने बड़े ही डिटर्मिनिस्टिक वर्ड में ये कहा था कि मैं कौवे और कुत्ते की मौत मरूंगा, लेकिन मैं इस आश्रम में पूर्ण स्वराज लिए बिना वापस नहीं आऊंगा. Brave never run away from struggle. The one who runs by seeing the struggle is not brave. गांधी जी along with his supporters started the Dandi March. यानी कि बहादुर जो है वो कभी भी चुनौतियों से भागते नहीं है, और जो भागते हैं वो बहादुर नहीं होते. This march was 370 kilometers, which included Aslali, Bareja, Nadiyad, Anand, Boriavi, Ras, Jambusar, Bharuch, Surat, Navsari, as well as small and large regions. तो दांडी यात्रा के अंदर जो अहमदाबाद से शुरू हुई, उसका टोटल रूट था 317 किलोमीटर का, कि जिसके अंदर ये सारे गांव इंक्लूड होते थे. ड्यूरिंग द दांडी मार्च इन दिस रीजन्स,
people were explained the reason for civil disobedience movement and breaking the salt law. दांडी यात्रा जहाँ कहीं भी रुकती थी वहाँ पे लोगों को ये समझाया जाता था कि क्यों सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो शुरू की गई और नमक का कानून तोड़ने की ज़रूरत क्या है. As Dandi march passed through these small and large towns, people used to clean the village roads, decorate their houses with toran and shout conscience for this satyagrah. दांडी यात्रा जहाँ से भी गुजरती थी लोग वहाँ पे गाँवों में साफ सफाई करते थे, घरों के ऊपर तोरण लगाते थे, घर में दिए जलाते थे दांडी यात्रा का स्वागत करने के लिए और अपना जो एक सपोर्ट है वो लोगों को दिखाने के लिए. दांडी यात्रा had a wonderful effect in creating astonishing faith, unity and consciousness among people. इस दांडी यात्रा ने लोगों के अंदर एक भरोसा जगाया कि अंग्रेजों के सामने लड़ने के लिए अहिंसा ही हमारा हथियार है और उसको ही अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो जल्द ही आज़ादी की ओर आगे बढ़ पाएंगे. All of the nations was having a wave of satyagrah. गांधी जी along with his colleagues and supporters reached Dandi after 24 days of march near about 5th April 1930. Okay, on early morning of April 6th, Gandhiji broke the salt law by picking a handful of salt from the sea coast. So, after the massive run of 370 kilometers starting from the Harijan ashram to the Dandi village near the Navsari, on the morning of April 6th, Gandhiji arrived at Dandi and broke the salt law by picking a handful of salt. In a very loud voice, Gandhiji stated, "I have broken the salt law." And while addressing the people gathered there, he uttered, "I, by this event, am applying salt to the foundation of building in the form of British Empire." गांधी जी ने हाथ में चुटकी भर नमक उठा के वहाँ पे ऐलान किया कि आज से मैं नमक का कानून जो है वो तोड़ रहा हूँ. और जब लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए तो उन्होंने उनसे ये कहा कि मैं इस घटना से ब्रिटिश साम्राज्य के जो फाउंडेशन है, जो नींव है, उसके ऊपर नमक लगाता हूँ, यानी कि जंग लगाता हूँ. श्री महादेव भाई देसाई has compared this event as a Mahabhi Nishkraman, that great renunciation. Journalists, photographers, writers, historians of India and across the world visited and published a report about what they witnessed in their own newspaper and booklets. गांधी जी की इस दांडी यात्रा का असर ये हुआ कि पूरे विश्व ने इसकी नोट ली. सभी फोटोग्राफर्स ने, जर्नलिस्ट ने, राइटर थे, हिस्टोरियंस थे, भारत और दुनिया से आए हुए लोगों ने इस प्लेस की विजिट ली और उसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार किया और अपने न्यूज़पेपर के अंदर अपने शब्दों में छापा. इन दिस वे द दांडी यात्रा विच स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम ऑन 12th of March was nationally acclaimed, achieved its physical completion, but it started applying salt to the foundation of building in the form of British Empire. So here Gandhiji showed who is breaking the salt law. Civil disobedience movement generated new national consciousness among people of India. The British police beat them mercilessly. Lathi charge, arrest, shooting and oppression on women and children continued, but agitation did not decrease. सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को दबाने के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा लाठीचार्ज किए गए, लोगों को हिरासत में लिया गया, बंदूक से गोलीबारी की गई
और बच्चों और महिलाओं को काफ़ी तंग किया गया। लेकिन ये ऐसी एक निरंतर चलने वाली घटना थी कि जो रुकने का तो नाम ले ही नहीं रही थी, लेकिन और बढ़ रही थी। During the Dandi March, numerous constructive programs like boycott of foreign clothes, prohibition of liquor, removing untouchability, Hindu-Muslim unity, and oath to do social service, etc. were held. गांधी जी जहाँ पर रुकते थे वहाँ पे कई सारे रचनात्मक कार्यक्रम होते थे, जैसे कि विदेशी कपड़ों की होली करना, लिकर यानी कि दारूबंदी की शपथ लेना, अछूतपने से छुटकारा पाना, हिंदू और मुस्लिम के बीच में एकता स्थापित करना और कई सारी सामाजिक सेवा के नींव वहाँ पे रखी जाती थी। दांडी यात्रा एंड ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ ब्रॉट नॉट ओनली नेशन वाइड कॉन्शियसनेस बट इट ब्रॉट फेम इन एस्पेक्ट्स ऑफ नॉन वायलेंस स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स वर्ल्ड वाइड। ये दांडी यात्रा ने सिर्फ यही साबित नहीं किया कि किस तरीके से हम ब्रिटिशरों के ऊपर राज कर सकते, लेकिन अहिंसा के हथियार के बारे में भी बड़ी ही अच्छी तरीके से लोगों को जानकारी दी। प्रोसेशंस, प्रोग्राम्स एंड असेंबलीज वर कंडक्टेड फॉर बॉयकॉटिंग फॉरेन गुड्स, प्रोहिबिशन ऑफ फॉरेन लिकर एंड पिकेटिंग ऑन लिकर मेकिंग, नॉट गिविंग रेवेन्यू टैक्स, सत्याग्रह फॉर रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, ये सारे प्रोग्राम्स हुए। To weaken this agitation and struggles, the government started lathi charge, imprisonment and other atrocities. People reacted by destroying of railway station, post office, police station and other government buildings. People are in also anger when the Britishers are doing a lathi charge or shooting on the people. People reacted in this way. They destroy the railway station, post offices. They make a huge damage to the government properties. Incidents like suppression of agitation under the leadership of Abdul Ghaffar Khan, Frontier Gandhiji at Wadala, Bombay, struggle against foreign liquor under the leadership of Kasturba Gandhi in Bombay, Dharasana in Surat and in Viramgam during the Salt Law agitation. Renunciation of government services as well as removal of children from government schools were the major highlights of these movements. ये सारी गतिविधियां की गई कि जिसके अंदर दांडी मार्च की इफेक्ट आई। दांडी मार्च की वजह से ना सिर्फ लोग जागरूक हुए, लेकिन लोगों के अंदर ये विश्वास बैठा कि अहिंसा नामक हथियार से हम कितनी सारी चीज़ों को अंग्रेज़ों के सामने हमारी रख सकते हैं, हम कैसे उनका विरोध कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव इफेक्ट के तौर पे उभर के आई भारत की स्वतंत्रता के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ तक रखते हैं, दांडी यात्रा तक। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे गांधी इरविन पैक्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड मोरेटोरियम ऑफ सत्याग्रह। तब तक थैंक यू, शुक्रिया।